मैं डॉक्टर नीलम गुप्ता, बीएससी पार्ट 3 क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी के हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी की क्लास स्टार्ट कर रही हूँ। पिछली क्लासेस तक हम लोगों ने पढ़ा था कि ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के क्या क्या फीचर्स थे, किन किन फीचर्स को क्लासिकल मैकेनिक्स के द्वारा नहीं समझाया गया। वीन्स और रेले जीन्स ने अपने अपने प्रयासों से अपने अपने एक्सप्लेनेशंस दिए, लेकिन दोनों कम्प्लीटली ब्लैक बॉडी रेडिएशन के कंप्लीट स्पेक्ट्रम को समझाने में असफल रहे। उसके पश्चात प्लैंक ने अपने विकिरण नियम की विवेचना की, जिसके आधार पर प्लैंक ने रेडिएशन के नियम को मैथमेटिकली जो निकाला सूत्र, उसका उन्होंने कंसीडर किया कि यदि मान लो हमारे पास कोई भी ब्लैक बॉडी है, उससे अगर रेडिएशंस निकलते हैं तो उन रेडिएशंस की जो स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता है, उसका यदि हम लैम्डा के साथ ग्राफ खींचते हैं तो जो गणितीय व्यंजक है वो हमें प्राप्त मिलता है, जिसको मैंने यहाँ समीकरण 1 के द्वारा व्यक्त किया गया है। ई लैम्डा डी लैम्डा इज इक्वल टू 8 पाई एच सी अपॉन लैम्डा की पावर 5 डी लैम्डा अपॉन एक्सपोनेंशियल एच सी अपॉन लैम्डा के टी माइनस 1। एच प्लैंक कांस्टेंट है, सी वेलोसिटी ऑफ लाइट, लैम्डा जो है वो हमारा वेवलेंथ है, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। जब हम इस प्लैंक के रेडिएशन लॉ की बात करते हैं, हमें ये जो गणितीय समीकरण प्राप्त हुआ है, इस गणितीय समीकरण को हम ये जस्टिफाई करना चाहते हैं कि यह गणितीय समीकरण हमारा लघु तरंग दैर्ध्य पर वीन्स के मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की तरह ही रिड्यूस्ड हो जाता है। जैसे अगर हम कंसीडर करें कि लघु तरंग दैर्ध्य पर अगर हम माने, तो हम ये जानते हैं कि जैसे लैम्डा का मान छोटा होगा, व्हेन द लैम्डा इज अप्रोचेस टू 0, दिस एच सी अपॉन लैम्डा के टी की वैल्यू डेफिनेटली इस लैम्डा के करस्पॉन्डिंग कहीं बहुत ज़्यादा होगी, अर्थात एच सी अपॉन लैम्डा के टी, बिकॉज दिस लैम्डा इज अप्रोचेस टू 0. So anything which is divided to a very small term is definitely will be greater than 1. So in equation number 1, when we can observe here, rather than this exponential hc upon lambda kt, this 1 is very very small in comparison to this exponential term. So this equation number 1 is reduces, we can ignore this 1 from here. So this equation is reduces from e lambda d lambda is equal to 8 pi hc upon lambda की पावर 5 e raised to the power hc upon lambda kt. You can observe here if we consider 8 as a number, pi is also a number, h is a Planck constant, this again c is a constant. So this whole term 8 pi hc is considered as a constant term, which is represented by a, and the remaining hc upon k is again a constant term, where h is the Planck constant, c is also constant, k is Boltzmann constant. So this is represented by another constant b. Then this equation is reduces that e lambda d lambda is equal to a to upon lambda की power 5 e raised to the power minus b upon lambda t d lambda. अगर मान लो इस समीकरण को हम वीन के विकिरण नियम पर जाते हैं तो एग्जैक्टली यही समीकरण हमें वीन के नियम से मिलता है, अर्थात यह जो समीकरण है, दिस इक्वेशन इज एप्लीकेबल फॉर द लोअर वेवलेंथ रीजन. If this is applicable for the lower wavelength region, then the Planck radiation law, which is given by the equation number 1, is again examined for the higher wavelength region. When we examine this for the higher wavelength region, that means we are trying to justify the Rayleigh-Jeans radiation law. As we consider for the higher wavelength region, when this lambda is greater, very very greater than hc upon kt, in that case this hc upon lambda kt, here in the denominator this lambda is a very large term, so this hc upon lambda kt is definitely very very small in comparison to 1. In this case, this exponential of hc upon lambda kt can be expanded like 1 plus hc upon lambda kt. Higher terms को ignore कर दिया, because as well as this lambda is increases, it is
the higher power of this lambda, the next term will be comes out to be 1 upon factorial 2 hc upon lambda kt whole square. So this lambda square comes in the denominator. So this overall hc upon lambda kt whole square is a very small term. So in comparison to these first two terms, the third term can be ignorable. So I just write down only the two term 1 plus hc upon lambda kt. I can substitute the value of this exponential hc upon lambda kt is equal to 1 plus hc upon lambda kt in equation number 1, which is given by the Planck radiation law. You can observe again in this equation we are trying to substitute the value of this e raised to the power hc upon lambda kt like 1 plus hc upon lambda kt. So now we can observe this 1 is cancel out. So this is equal to lambda d lambda is equal to 8 pi hc upon lambda 5 1 plus hc upon lambda kt minus 1. So this 1 will be cancelled out with this one. So finally we will get 8 pi hc upon lambda ki power 5 d lambda, and this is our Rayleigh's-Jeans radiation law. That means this law is applicable for the higher wavelength region. This E lambda d lambda is equal to 8 pi kt upon lambda ki power 4 d lambda. This is our Rayleigh's-Jeans radiation law, and we know that Rayleigh's-Jeans radiation law is applicable for the higher wavelength region. So we can say the Planck radiation distribution law is completely able to explain the black body radiation curve. Now we consider what about the specific heat of solids, because the specific heat of solids are also another feature which was not explained on the basis of classical theory. ऐसा क्या कारण था कि क्लासिकल थियरी इसको नहीं समझा पा रही थी? इसके लिए हमने फिर से कंसीडर किया कि हम जानते हैं कि यदि मान लो हम ठोसों में स्पेसिफिक हीट विशिष्ट ऊष्मा की बात करें तो हम ये कहते हैं कि विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है? किसी भी निकाय के एकांक द्रव्यमान के ताप को यदि 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जिस ऊष्मा आवश्यक ऊष्मा की मात्रा होती है उसे हम निकाय की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं. अगर हम गणितीय रूप से इसको व्यक्त करना चाहें तो पहले तो हम ये कंसीडर करेंगे कि मान लो मैं विशिष्ट ऊष्मा को C से रिप्रेजेंट करती हूँ, देन दिस C कैन बी रिप्रेजेंटेड एज dq अपॉन dt. यहाँ पर जो हमारा dq है वो क्या बता रहा है? dq जो है इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू द सिस्टम, एंड दिस dt इज द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर विच इज इंक्रीज्ड of the system due to the energy dq given to the system. dq हमारे पास क्या है? यह ऊष्मा की वह मात्रा है जिसके कारण जो ऊष्मा निकाय को दी जाती है. dt हमारे पास वह निकाय के ताप में परिवर्तन है जो dq ऊष्मा दिए जाने के कारण निकाय में परिवर्तित हुआ था. यदि मान लो हम इसी चीज़ को कांस्टेंट वॉल्यूम पर कंसीडर करें तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर हम जानते हैं कि उसमें निकाय को दी गई ऊष्मा निकाय में परिवर्तन du के बराबर होती है. तो dq du के बराबर होगा. तो एट द कांस्टेंट वॉल्यूम दिस Cv इज रिटन एज du अपॉन dt. व्हाट इज दिस du? इट इज द चेंज इन द इंटरनल energy, as well as when we put the volume constant, the amount of heat energy given to the system is equal to the amount of internal energy. So this is represented as the specific heat at constant volume. Similarly, like constant volume, we can also consider the specific heat at the constant pressure. The specific heat at the constant pressure is again represented by Cp, and it is equal to dq upon dt at constant P. चिरसम्मत सिद्धांत के अनुसार हम ये जानते हैं कि जितने भी ठोस हैं उन सभी ठोसों में ऊष्माधारिता जो है वो नियत होती रहती है. यह ऊष्माधारिता ताप पर निर्भर नहीं करती है. अर्थात यदि हम चिरसम्मत भौतिकी या चिरसम्मत सिद्धांत के अनुसार यदि कंसीडर करें तो किसी भी ठोस के लिए 1 मोल पदार्थ में
विशिष्ट ऊष्मा जो है वह लगभग 6 कैलोरी के बराबर होती है। चूँकि इसे ड्यूलॉन्ग पैटेट ने डिस्कवर किया था, इनोवेट किया था, इसलिए इस नियम को हमने नाम दे दिया गया था, तत्कालीन वैज्ञानिकों ने नाम दे दिया गया था कि इसे हम ड्यूलॉन्ग और पैटेट का नियम कहते हैं। ड्यूलॉन्ग और पैटेट के नियम के बाद ये कंसीडर किया गया कि यदि मान लो हम इस कर्व को देखें, ये तो ड्यूलॉन्ग एंड पैटेट ने जो कंसीडर किया, उसके बाद ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा निकालने के लिए कुछ प्रायोगिक प्रयोग किए गए। कुछ जो प्रायोगिक प्रयोग किए गए, उन प्रयोगों से जो हमें मिला, जो रिजल्ट्स हमें मिले, वो रिजल्ट्स क्या कहते हैं? वो रिजल्ट्स कहते हैं कि अगर मान लो, उससे पहले मैं एक और चीज़ आपको बताना भूल गई, क्योंकि हम ये कहते हैं कि कोई भी हमारे पास यदि ठोस पदार्थ है, यदि हम कोई भी ठोस पदार्थ जो है उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, अगर मान लो हम ये कहें कि चिरसम्मत भौतिकी के अनुसार ठोस में जो परमाणु हैं, हम जानते हैं कि ठोस में जितने भी परमाणु हैं वो रेगुलरली अरेंज्ड हैं और अपनी माध्य अवस्था के प्रति कंपन करते हैं। अगर हम एक विमीय गति कंसीडर करें तो ऊर्जा के समविभाजन के सिद्धांत के अनुसार हम ये कह सकते हैं कि उस परमाणु में, उस ठोस में प्रत्येक परमाणु की ऊर्जा kT के बराबर होगी। परमाणु की माध्य स्थिति से यदि 3 डायमेंशनल स्पेस में हम कंसीडर करें तो 3 kT के बराबर हो जाएगी। अगर मान लो 1 मोल ठोस पदार्थ लें तो हम उसको कंसीडर करेंगे कि K जो है वो हमारा n0 K के बराबर हो जाएगा। n0 एवोगैड्रो नंबर है, इट इज इक्वल टू 3RT। और एक मोल ठोस पदार्थ की यदि हम स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा कंसीडर करें तो वह हमारी 3R के बराबर आती है। विशिष्ट ऊष्मा की ताप के साथ जो निर्भरता है वह हमने इस फिगर में, इस कर्व में शो करा है। लेकिन जब हम इस कर्व को देखते हैं, चूंकि यह हमारा एक एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है जो यह बताता है कि जैसे जैसे हम ताप को कम करते हैं पदार्थों की विशिष्ट ऊष्मा में भी परिवर्तन होता है। ताप बढ़ाने पर पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा बढ़ जाती है और अधिक तापों पर यह लगभग एक नियत मान प्राप्त करती है जो कि 3R के बराबर है। और चिरसम्मत भौतिकी क्या कहती है कि ठोसों में विशिष्ट ऊष्मा का मान नियत रहता है। तो इसका एक्सप्लेनेशन जो है वो हमारा क्लासिकल फिजिक्स नहीं दे पाई, क्योंकि हम जानते हैं कि हमें जो प्रायोगिक परिणाम मिले हैं वह हमें बताते हैं कि जैसे जैसे हम निम्न तापों पर जा रहे हैं वैसे वैसे विशिष्ट ऊष्मा घट रही है। चूँकि चिरसम्मत भौतिकी या चिरसम्मत फिजिक्स जो है वह इस कारण को नहीं समझा पाई कि क्या कारण थे जिसकी वजह से लोअर टेम्परेचर्स पर विशिष्ट ऊष्मा घट रही है, जबकि सिद्धांतिक जो है ड्यूलॉन्ग एंड पैटेट का जो नियम है वो कहता है कि ऊष्माधारिता विशिष्ट ऊष्मा नियत रहनी चाहिए। इस चीज़ को आइंस्टाइन ने प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत का आधार बनाकर ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा की व्याख्या करी। हालांकि ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा को क्वांटम मैकेनिक्स में हमने एक फिनोमेनन के आधार पर कंसीडर किया है कि दिस इज वन ऑफ द फिनोमेना विच वाज नॉट एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिकल थ्योरी इन द डिटेल ऑफ द स्पेसिफिक हीट ऑफ द सॉलिड्स एज वेल एज gases is also considered in our other paper, solid state physics. So next we'll consider in the next class what are the other phenomenon which was not explained on the basis of classical physics or classical principles. So that's all for today.